آئی بی اور آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے سربراہ ہیں وہ اس میٹنگ میں کوئی ابتدائی طور پہ جو ہے وہ پریما فشائی کوئی بات رکھیں گے، اور میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو بادی نظر میں ان کی معافی قبول کر چکی ہے، اور حامد خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی ہے، مگر بادی نظر میں یہ اگلی تاریخ پہ پتہ چلے گا۔ ان کو معافی ناک رگڑ کے مانگنی پڑے گی، ناک رگڑ کے معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آئی ایس آئی اور آئی بی وزیر اعظم کی آڈیو لیک سے متعلق کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انکشاف۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، اگر وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی آلہ لگایا گیا ہے تو پھر یہ سیریس بات ہوگی۔ عمران خان اسلام آباد آئے، اس کا بندوبست کر لیا ہے، اسے جگ میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیں گے۔ ریڈ زون کے 3 مقامات کے علاوہ عمران خان اسلام آباد میں جہاں چاہے جلسہ کر سکتا ہے۔ مریم نواز کی مبینہ آڈیو لیک میں عمران خان کو سزا سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ تو وہ 10 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو اگر لاڈلا نہ بنایا گیا تو توشہ خانہ کیس میں اسے سزا ہوگی۔ عمران خان آڈیو لیک پر بات تو کر رہا ہے مگر وہ اپنی ٹیپوں کا تو جواب دیں، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ اور فراگوگی کا تو جواب دیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس پر جے آئی ٹی بن گئی، حساس اداروں کے نمائندے بھی جے آئی ٹی میں شامل۔ آڈیو لیکس پر وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو بلا لیا، اہم وفاقی وزراء اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ جے آئی ٹی کو وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے تفتیش کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی باتیں کیسے باہر آئیں، کس نے یہ کام کیا، کون کون سے آفیسر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، بات چیت ریکارڈ کرنے کے لیے آلات لگائے گئے یا موبائل فون سے ریکارڈنگ کی گئی، تحقیقات شروع کر دی گئی۔ آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں۔ ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے، مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں، میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو، فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس، یہ ہے الیکشن کمیشن۔ عمران خان کو پہلے پتہ چل گیا، دعویٰ کیا کہ ایک اور آڈیو آنے والی ہے جس میں مریم اپنے والد سے کہہ رہی ہیں کہ فکر نہ کریں، الیکشن کمیشن توشہ خانہ میں عمران خان کو نااہل کرنے والا ہے۔ آڈیو لیک سے پتہ چل گیا کہ چیف الیکشن کمشنر شریف خاندان کے گھر کا نوکر ہے، یہ ملک کو لوٹتے ہیں، باہر جاتے ہیں اور این آر او لے کر واپس آ کر پھر ملک کو لوٹتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو ڈیل کے تحت لایا جا رہا ہے۔ عمران نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف میرٹ پر آنا چاہیے تو مصیبت پڑ گئی۔ عمران خان کو جلسے کی اجازت دینے پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، مریم نواز کا مطالبہ۔ کہا کہ تعلیمی ادارے کو سیاسی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے یونیورسٹی میں سیاسی پروگرام کے انعقاد کا نوٹس لے لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی سی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اس فتنے کو بلا کر جلسے کرا رہا ہے، ایسے لوگ یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں تو انہیں نکال دینا چاہیے، اس وائس چانسلر کا محاسبہ ہونا چاہیے، اس پر مقدمہ ہونا چاہیے، یہ فتنہ گری کرا رہا ہے، بچوں کے ذہنوں کو گندا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان پہنچ گئے، اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں، سینیٹر اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جس عہدے کو چھوڑ کر گئے تھے اسی کو واپس سنبھالیں گے۔ 2013 سے 17 کے دوران بہترین معیشت چھوڑی، اسی پوزیشن پر واپس لائیں گے۔ اسحاق ڈار کی سینٹ کی نشست خالی قرار دینے کے کیس کی سماعت۔ کیا اسحاق ڈار کو طویل غیر حاضری کے بعد سینیٹر کے عہدے کا حلف اٹھانے کی اجازت ہوگی؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈالر کو ڈار کا ڈر، اسحاق ڈار سے پہلے ڈالر کی واپسی، ایک ہی جھٹکے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے 90 پیسے سستا، بھاؤ 237 روپے 50 پیسے ہو گیا۔ انٹر بینک میں 2 روپے 63 پیسے کمی، 237 روپے 2 پیسے کا ہو گیا۔
स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 41,151 की सतह पर बंद हुआ। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार को पाकिस्तान में महंगाई में कमी, डॉलर को काबू करने और मईशत की तरक्की का भी टास्क दिया गया है। हरनाई हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। आला फौजी और सिविल हुक्काम ने शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद का जसद खाकी आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। पाक फौज के हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरा। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। मेरी अखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ, और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अदालत का फैसला आ गया है, केएमसी खुद इकट्ठा करेगी, यानी कि किसी की जेब में पैसा जाएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में केएमसी टैक्स की वसूली रोक दी थी। अदालत ने कहा कि कराची में सफाई तो हो नहीं रही, पैसे ले रहे हैं तो सर्विसेज तो दें, जैसे भी रिकवरी करनी है करें, मगर के इलेक्ट्रिक से ना करवाएं। मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी। पुराने तरीके से केएमसी की रिकवरी 20 से 21 करोड़ रुपए है। बिजली के बिल के जरिए टैक्स वसूल करते तो शहरियों से 3.25 अरब रुपए मिल जाते। साबिक वजीर आजम इमरान खान को कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टेरियान वाइट को छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। इस केस को इलेक्शन कमीशन क्यों न भिजवा दें। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसल वार्डा केस भी इसी नौइयत का था। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा था, समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। सैलाब गुजरे महीना हो गया, लेकिन बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद की तहसील गंदाखा की सड़कें अब तक कई फीट पानी की नजर। ना इमदाद पहुंची, ना कोई मेडिकल कैंप कायम हुआ। गुज़िश्ता महीने से तहसील गंदाखा का राब्ता पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता है, जो अब तक बहाल नहीं हो सका। जियो न्यूज की टीम कठिन सफर तय करके गंदाखा पहुंचने में कामयाब। जबलपुर और आरिफ बिरोही से मुत्तसिल गांव में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से देहात के दरमियान सड़कें भी कटाव का शिकार। सिंध के सैलाबजदा इलाकों में कई फीट पानी जमा होने से बीमारियों में तेजी से इजाफा। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान 6 मरीज इंतकाल कर गए। दादू में 4 साला बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। जिला दादू में मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 27,000 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ बीमारियों के बायस एक माह के दौरान अमवात की तादाद 32 हो गई। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम के वालिद और सीनियर सहाफी अयाज अमीर का भी मजीद 1 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुल्जिम शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। अयाज अमीर ने अदालत में बयान दिया कि वाक़े के वक्त वो चकवाल में थे, खुद इस्लामाबाद पुलिस को इत्तला दी। कराची में एक तरफ डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा, दूसरी तरफ दवाओं की किल्लत। मरीज बीमारी से निढाल, घर वाले दवा की तलाश में परेशान। दुकानदारों का कहना है कि दवासाज कंपनियों की जानिब से माल फराहम ही नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 213 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में सबसे ज्यादा 148 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 69 और इस्लामाबाद में 68 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, 5 माह की हुकूमती कारकर्दगी मायूस कुन है। वजीर आजम एतराफ कर चुके हैं कि दिवालिया होने के करीब हैं। हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं। सैलाब से मुल्क को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इमरान खान के जरिए सियासत के बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम लाया गया। इस अदम इस्तेहकाम में बैनुल अक़वामी इदारे शामिल हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान पर वार। कहा, ना इमरान इस्लामाबाद आने की सलाहियत रखता है, ना इसके कारकुनान में हिम्मत है। ये जल से नहीं, इक़्तिदार से अलग होने के बाद फितरी तड़प है। इमरान खान हालात बिगाड़ना चाहते हैं तो इदारे तैयार हैं।
रमीजी पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, खबरदार किया कि कल को कहीं इसका नतीजा खून खराबा ना हो। ऐसा हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स होगा और वो है इमरान खान। पाकिस्तान की सियासत में तूफान बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ कराने वाले इमरान खान हैं। कल को खुद उनको और उनके खानदान वालों को इसी सलूक का सामना करना पड़ सकता है। मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में बदतमीजी, पीटीआई सपोर्टर्स भी मरियम औरंगजेब के हक में बोल पड़े। किसी ने कहा कि पीटीआई का सपोर्टर हूं लेकिन इस तरह के रवैये की भरपूर मजम्मत करता हूं। एक यूजर ने कहा यह एहतजाज नहीं है बल्कि हिरासानी है। एक अकाउंट से ट्वीट की गई कि पाकिस्तान की सियासत में झूठ नॉर्मल है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी को इस तरह परेशान किया जाए। किसी ने लिखा कि मरियम औरंगजेब आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम। वजीर आजम ऑडियो लीक्स पर हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना अच्छा फैसला है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा वजीर आजम ऑफिस से ऐसी लीक्स तशवीशनाक हैं। उन्होंने दावा किया कि ऑडियो लीक्स 140 घंटों की है और किसी ने इसे डार्क वेब पर नीलामी के लिए भी लगाया हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह डॉक्टर शुएब सडल ने कहा है कि वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईबी की है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वजीर आजम से मुलाकात करने वाले अपने साथ मोबाइल फोन ले आते हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गुस्से और मनफी जज्बात को परवान चढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से मुआशरों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। नफरत पर मबनी बयानात और गलत मालूमात तेजी से फैल रही हैं। हमारी मालूमात इस सिलसिले में इस्तेमाल हो रही हैं। इस रुझान से निपटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। लाहौर में वजीर आला पंजाब और इमरान खान की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पैकेज से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी जल्द मुमकिन होगी। फलाह आम्मा के प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। परवेज इलाही ने बताया कि बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस इमदाद दी है। मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफी होने के बाद कराची में जाहिद नहारी, इदरीस नहारी, जावेद नहारी, अल कबाब, गफ्फार और मीरठ कबाब में खाबे खाएंगे। मुस्ताफी वजीर का सोशल मीडिया पर जवाब। इनसे पूछा गया था कि वजारत से फरागत के बाद कराची पहुंचकर आपका पहला पड़ाव किस होटल में होगा। मिफ्ता ने जवाब में कहा कि वो धोरा जी का गोला गंडा भी खाएंगे। खुशकिस्मती से उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग खाम तेल की कीमत में 2% तक की कमी। WTI खाम तेल कई माह की कम तरीन सतह $77 फी बैरल पर फरोख्त। ब्रांड खाम तेल $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी मंडी में गैस $6.81 फी MMBTU में फरोख्त। चौथे T20 में पाकिस्तान की जीत के अहम किरदार और गेम चेंजर हारिस रऊफ का कहना है जहन में यही था कि आखिरी रन तक लड़ाई करनी है। लियाम डॉसन की कमजोरी का फायदा उठाकर विकेट ली और फिर टेल एंडर को अपनी बेहतरीन गेंद कराई। पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। T20 सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। दोनों टीमें आज से प्रैक्टिस करेंगी। कराची में होने वाले पहले मैच की गेट मनी 1 करोड़ 30 लाख रुपए PCB ने सैलाब जदगान के फंड में दे दिए। टर्न आउट 95% रहा। शुक्रिया। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस को अबूरी जमानत मिल गई। जैकलीन फर्नांडिस ने चंद्रशेखर नामी एक शख्स से महंगे तोहफे वसूल किए थे। बॉलीवुड अदाकारा नूरा फतेही भी चंद्रशेखर से लग्जरी गाड़ियां और दीगर महंगे तोहफे वसूल कर चुकी है।